Yes, sir. After question number 14, question number 16. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane. Sixteenth, Saloni, PA naught XA plus PB naught XB. PA naught PB naught question में दे रखे हैं. For mole fraction of A, mole fraction of B, weight is given. So weight से हम moles निकाल लेंगे. Molar weight is also given in the question. So moles of A upon moles of A plus B, moles of B upon moles of A plus moles of B. Solve कर लोगे इसके बाद. Yes, sir. चलो इसके अलावा कुछ होमवर्क था क्या डिस्कशन के लिए जो पेंडिंग है? Is there anything which is pending for the discussion? चले हम आगे फिर.
होप कॉपी कर लिया होगा अब तक। दर्शिता, देवकी, दिशा कॉपी हुआ है? रिप्लाई। Yes, sir. देखो, ideal solution. Till now we have been dealing with such kind of solution. यहाँ पर अगेन ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, हम इन्हीं सॉल्यूशन से डील कर रहे थे। It follows Rod's law for all composition of A and B. A and B का जो भी composition हो, मतलब 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, 99-1%, whatever their composition, whatever their fraction, they will always follow the Rod's law. That is P equal to P naught XA, PB equal to PB naught XB, and P total will be P naught XA plus PB naught XB, जो अब तक हम assume भी कर रहे थे। क्वेश्चन ये आता है, क्या सर हमारे पास ऐसा भी सॉल्यूशन होगा जो इनको फॉलो नहीं करेगा? Yes, we have such kind of solution which are called non-ideal solution. और क्यों इसको फॉलो नहीं करेगा? देखो, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है यहाँ पर। हमने A के मॉलिक्यूल्स को B के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स किया, ये A के मॉलिक्यूल्स, ये B के मॉलिक्यूल्स। अब A में आपस में कुछ इंटरेक्शन था, वी कॉल इट AA इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। B में आपस में कुछ इंटरेक्शन था, वी कॉल इट BB इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। On mixing these two solution A and B, now we have one more interaction, that is AB interaction. A interaction, BB interaction, now AB interaction. एक नया इंटरेक्शन पिक्चर में आ गया है। अब यदि A और B के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर है AA और BB इंटरेक्शन से, तब तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ना अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, neither they are decreasing, so the force of attraction remains same before addition and after addition. So there will be no change in the vaporization. जो अट्रैक्शन फोर्स पहले था वही अट्रैक्शन फोर्स बाद में भी है। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं हम। Force of attractions are increasing between these two. So if the force of attraction between AB is greater than AA and BB interaction, तो क्या होगा? Force of attraction बढ़ेगा तो वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? क्या लगता है हर्षल? If the force of attraction increases, then the vapor pressure will increase or it will decrease. The liquid will have more tendency to remain in liquid phase or it will vaporize. क्या होना चाहिए? Decreases. Yeah, Harshal का मैसेज आया, decreases, which is right answer. When force of attraction increases, the tendency of vaporization decreases, vapor pressure decreases. तो हमने जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था रॉड्स लॉ से, अब वेपर प्रेशर इतना ना हो कि उससे कुछ कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉड्स लॉ इज P naught XA, हमारा वेपर प्रेशर उससे कम हो जाएगा, वी कॉल इट नेगेटिव डेविएशन। नाउ द थर्ड पॉसिबिलिटी, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इनमें अट्रैक्शन कम हो गए, पहले अट्रैक्शन उतना ही थे जितना A और BB में था। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी? अट्रैक्शन बढ़ गए थे। थर्ड पॉसिबिलिटी, अट्रैक्शन कम हो गए। If the force of attraction decreases, then they will have more tendency of vaporization. अब वो ज्यादा वेपराइज होंगे, ज्यादा वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर will be more than expected from the Rod's law. That we call it non-ideal solution with positive deviation. Positive in terms of what? Vapor pressure बढ़ा, positive. Vapor pressure कम हुआ, negative. क्या इतना क्लियर है हमें अभी? Is that okay? चलो, तुम्हें कुछ भी, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ लोग अनम्यूट कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, मतलब मुझे थोड़ा तो आइडिया लगेगा क्या चल रहा है। 51 स्टूडेंट है, 51 में एक का कोई रिप्लाई नहीं, ना चैट बॉक्स में, ना थम्स अप कर दिया करो। हाँ सर क्लियर है, मतलब पता तो चले, थोड़ा तो मुझे लगे कि हाँ तुम अटेंड कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो। और कुछ बच्चे अनम्यूट करके भी, जब मैं बोलता हूँ क्लियर है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद तुम यस अनम्यूट करके बोल सकते हो।
थोड़ा इंटरेक्ट करते रहो हमेशा ना, तुम्हें भी थोड़ा फील होगा हाँ हम लेक्चर्स में बैठे हैं प्रॉपर्ली और इंटरेक्शन हो रहा है, क्लियर, हमें भी अच्छा फील होगा, ज्यादा एनर्जेटिक हम भी फील करेंगे पढ़ाने में। सो इंटरेक्शन करते रहना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं जब नाम लूं तभी अनम्यूट करना है, तुम अनम्यूट कर सकते हो मेरे लेक्चर, क्लियर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, मतलब लाइक बहुत सारे बच्चे एक साथ कर रहे होंगे, तो मैं खुद उस टाइम रोक दूंगा, टेंशन मत। बट मेरे लेक्चर में यू कैन अनम्यूट एनी टाइम, जब स्पेशली जब मैं बोलता हूँ क्लियर है तो अनम्यूट कर सकते हो। ओके, so in this case ideal solution force of interaction between AA BB is almost similar to AB interaction। अब आते हैं हम इस पर, delta H mixing is 0, delta V mixing is 0 sorry, if the force of attraction is not increasing or not decreasing, दोनों ही नहीं हो रहा है force of attraction के केस में, so enthalpy change, see, energy will release if the force of attraction increases, energy will absorb here if the force of repulsion increases, मतलब attraction decreases, but ना attraction बढ़े हैं ना कम हुए हैं, enthalpy of mixing is 0, volume change is 0, here delta V mixing is 0। अब वॉल्यूम चेंज क्यों होगा, जस्ट एज्यूम करो ये 50 ml ये 50 ml दोनों को ऐड किया 100 ml बनाया हमने सॉल्यूशन को, सो 100 ml बनाया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 plus 50 100 ml हो, but if the force of attractions are increasing this molecule will come close to each other, then the volume will decrease, बजाय वो 100 ml के it may be possible वो 97 98 ml है, और यदि हमने उन दोनों को मिक्स किया फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गए, तो मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल जितने डिस्टेंस पर थे ए बी में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ गया तो वो 100 ml की जगह 102 103 ml हो जाएगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुए वॉल्यूम बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए मॉलिक्यूल पास आ गए वॉल्यूम कम हो गया। इफ देयर इज नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। क्या इतना हमें दोनों समझ में आता है ये? Yes, sir. Waiting for reply, come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब आते हैं हम इन दोनों टर्म पे, डेल्टा एस मिक्सिंग एंड डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग डेल्टा जी मिक्सिंग ये चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑलवेज इंक्रीजेस। हमने ए को बी में मिक्स किया है तो डेफिनेटली डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस बढ़ेगी। हमने मेडिकल बेच को इंजीनियरिंग बेच को एक ही रूम में बिठाया है, ज्यादा रैंडमनेस हो, चाहे कैसा भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल थ्री केसेस, आइडियल का एक और नॉन आइडियल का ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल थ्री केसेस। हम सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, इफ वी आर मिक्सिंग ए एंड बी एंड दे आर मिक्सिंग ऑटोमेटिकली, हमें कुछ एनर्जी या ऐसा नहीं है कुछ फोर्सफुली उन्हें मिक्स करना पड़ रहा है, so the process will be spontaneous, it will occur on its own, delta G mixing will be negative, yeah? So these two are based on thermodynamics। इसका रिवीजन होगा, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया था उन्हें वो अच्छे से पता लगेगा। एग्जांपल्स तुम देखोगे यहाँ पर NHN plus NF10, तो दोनों सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कब चेंज नहीं होगा, जब A और B मॉलिक्यूल, हम A और B को मिक्स कर रहे हैं, दोनों का सिमिलर नेचर हो। NHN NF10 से एक कार्बन इंक्रीज हो गया, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सब कुछ सेम है, सिर्फ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। बेंजीन एंड टोलिन एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ एक CH3 एक्स्ट्रा आ गया। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल ग्रुप इज सेम, ब्रोमीन आयोडीन सब चेंज हो गए, तो बहुत माइनर से चेंजेस हैं, तब वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, तभी तो उनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, अदरवाइज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसका ग्राफ ऑलरेडी हमने पहले ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है नहीं किया है ग्राफ हमने? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ग्राफ हम ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर चुके हैं, ये आइडियल का ग्राफ हो जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir.
होप कॉपी कर लिया होगा अथर्व। यस सर। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। Non-ideal solution. We can have two types of non-ideal solution. One with the positive deviation, another with the negative deviation. Positive deviations में हमारा vapor pressure जो होगा that will be more than expected from the Rod's law. In negative deviation, vapor pressure will be less than expected from the Rod's law. Clear? So vapor pressure is more than expected from Rod's law. PA is greater than PA naught XA. PB is greater than PB naught XB, and P total is greater than PA naught XA plus PB naught XB. This is suggested from Rod's law. Here the force of attraction after mixing will be less. If the force of attraction is less, more vaporization will be there. So AA-BB interaction जो पहले था is more than final AB interaction. यहाँ पे just opposite हो जाएगा. A interaction and BB interaction is less than final AB interaction. यहाँ पे force of attraction बढ़ेगा, यहाँ पे force of attraction कम हुआ था. Vapor pressure कम होगा, vapor pressure बढ़ा. क्या first two point clear है सभी को? किसी को डाउट है तो पूछो भी, मैं वेट कर रहा हूँ. फर्स्ट टू पॉइंट्स, ये इंटरेक्शन लिखा हुआ है ना, इंटरेक्शन. इज देयर एनी डाउट इन फर्स्ट टू पॉइंट? क्लियर है सर. वैभव, वेद, वेदांत, इज दैट ओके? फर्स्ट टू पॉइंट. विराज, यस सर. हाँ. नो सर, क्लियर नहीं है या कुछ डाउट नहीं? किसके लिए लिखा है रोहित? नो सर. रोहित, इज देयर एनी डाउट? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर. If the force of attraction increases, then the energy will release. If the force of repulsion increases, then the energy will absorb. If energy is absorbed, delta H is positive. यहाँ पे force of attraction कम हो रहा है, मतलब repulsion बढ़ रहा है. Repulsion बढ़ रहा है, delta H mixing is positive. Repulsion बढ़ रहा है, after mixing volume will be more. Molecule will go away from each other due to repulsion. So these two are positive. ये दोनों zero थे in case of ideal. पॉजिटिव डेविएशन में दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में दोनों नेगेटिव. डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग. यहाँ पे अट्रैक्शन बड़ा है, एनर्जी रिलीज होगी, एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव. वॉल्यूम विल बी समवॉट लेस देन एक्सपेक्टेड. जितना हमने 50-58 किया है तो 100 के बजाय 98-97 हो जाएगा नेगेटिव ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बाकी ये दोनों के साइन तो मैंने बताया ही है, हमेशा सेम रहेंगे इन ऑल थ्री केसेस. डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव. कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. अब एग्जांपल्स वैसे तो हमें याद ही रखने हैं, बट मैं थोड़ा सा बेसिक लॉजिक बता देता हूं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर इंक्रीजिंग. Any acids in water will donate H plus ion which will form hydrogen bond, dative bond with the water. काफी strong attraction हो जाएगा यहाँ पर. Any acid plus water will give negative deviation. कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं ऐसे के फॉर्मिक एसिड, HCl, HNO3 और कोई भी एसिड ले लो. क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन. Chloroform plus acetone will form hydrogen bond. Hydrogen bonding पिक्चर में आ गई है, force of attraction बढ़ेगा. तो यही एग्जांपल था 7th क्वेश्चन जो मैंने बोला था आज कवर होगा. क्लियर? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही, नेगेटिव डेविएशन. H2O, H2O का जो डायपोल मोमेंट होता है काफी ज्यादा होता है. H2O can form very strong hydrogen bond while CH2H cannot form hydrogen bond. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी कम, इसमें काफी ज्यादा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएंगे. एक पोलर नेचर, एक नॉन पोलर नेचर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? इथेनॉल प्लस हेक्सेन. हेक्सेन जीरो डायपोल मोमेंट, इसका कुछ नेट डायपोल है, इसलिए इसमें आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में. इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन जीरो डायपोल मोमेंट, इसका फिर भी कुछ डायपोल मोमेंट है. क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4. CCl4 है जीरो डायपोल मोमेंट, CH3 का नेट डायपोल मोमेंट है. तो इन सारे ऑप्शन में हम ऐसे कुछ लर्न कर सकते हैं. एक का डायपोल मोमेंट दूसरे से ज्यादा है. मे बी पॉसिबल वन ऑफ देम हैज जीरो डायपोल मोमेंट, अनदर विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डायपोल. क्लियर? वैसे एग्जांपल याद ही रखने, बट लॉजिक मैंने बता दिया.
प्रिया, पल्लवी, क्लियर इतना? स्नेहा? Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर थ्योरेटिकल, जिसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं डायरेक्ट पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल, फॉर नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन अलोंग विद एग्जांपल्स। इतना हमें ध्यान ही रखना है। क्लियर? लॉजिक मैंने डेफिनेटली सबका एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हेडिंग इसी में ही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद ही है एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अच्छा, मुझे इसके ग्राफ और ड्रॉ करना रह गए हैं, मैंने ग्राफ तो ड्रॉ ही नहीं किए। ये कट कर लो जी, तुमने कर लिया हो तो उसके बाद लिखना, क्योंकि इसके ग्राफ बचे हुए भी ड्रॉ करना। चलो देखना, यहां पर ये दोनों ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन। अब आते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो कुछ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जो रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट किया है। दिस ग्राफ विल गो अपसाइड, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट को मैच करेगा। दिस इज P नॉट, दिस इज PB नॉट। यहाँ पे वेपर प्रेशर ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया है, मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। डैश लाइन इज फॉर रॉल्स लॉ, दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन सॉलिड लाइन। इसके लिए भी हम ड्रॉ करेंगे वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ था, नाउ दिस ग्राफ विल शिफ्ट डाउनसाइड टू दैट आइडियल ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ। कुछ ऐसा हो।
ड्रॉ कर लिए दोनों ग्राफ। Yes, sir. Azeotrope, azeotropic mixture or constant boiling mixture all are same. They are the solution with very large deviations from the Raoult's law, from the ideal behavior. They have same composition of A and B in the liquid and vapor phase. तो A का यदि 30% liquid में है तो A का 30% vapor में भी होगा. Same for B. So fraction of A in the liquid solution, fraction of A in the vapor phase. That will be same. Yeah. तन्वी कॉपी किया है? तन्वी Tanvi, can you hear me?
होप कॉपी किया होगा सभी ने। मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है, उसके बाद अगेन फर्दर इस पे डिटेल में जाते हैं। सी बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, they are the extreme case of the non ideal solution। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एक्सट्रीम केस का क्या मतलब हुआ, इनका जो ग्राफ आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसे था। they will have such kind of graph। ये ग्राफ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तुम देखो कि यहाँ पे we are not getting any peak value kind of। यहाँ पे ग्राफ ऊपर जाकर नीचे आएगा और जो सबसे पीक वाला वैल्यू होगा that will be the point of the azeotrope। इस पॉइंट पर लिक्विड का और वेपर का फ्रैक्शन सेम होगा। मैंने दो ग्राफ ड्रॉ किए, एक ग्राफ है जो नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं P टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, P टोटल वर्सेस X है। अनदर ग्राफ इज P टोटल वर्सेस Y। तो यहाँ पे X और Y दोनों मर्ज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। सो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहा जाता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अगेन ये ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है। I have done my BTech project for the one complete year on this heading, azeotrope, how to separate azeotropes, azeotropes का होता है उनका explanation। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट का है, तो हमें कुछ पॉइंट्स है जो इसमें ध्यान रखने। क्लियर? मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में आई हैव डन वन कंप्लीट ईयर प्रोजेक्ट ऑन दिस हेड। तो मुझे टोटल 2 सेमेस्टर में ये मैंने किया था, बट अगेन उतना डिटेल में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। हमें काफी बार थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि ये कैसे वो कैसे, बट कुछ पॉइंट्स है जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उतने पॉइंट्स में आप जितना एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूं तो दूंगा ही डेफिनेटली। they have same composition of A and B in the liquid and vapor phase। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हाँ ऐसा है, ये हमें याद रखना है। x से y इक्वल है, x भी y भी इक्वल है, और ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पर सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जहां पे एजियोट्रोप बन रहा है, एजियोट्रोप सिर्फ यहाँ पे बनेगा। ऐसा नहीं कि इस कंपोजिशन पे बन रहा है, इस पे बन रहा है। That means तुमने A और B को मिक्स किया, they will not form azeotrope for all the composition। यदि तुमने उसको इसी रेशो में मिक्स किया तो ही वो एजियोट्रोप बनाएगा। या नेक्स्ट पॉइंट लिखा है that boils at constant temperature। What does it mean they boils at constant temperature? क्या दूसरे सॉल्यूशन कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉईल नहीं होते हैं? वाटर तो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, बट यस द अदर सॉल्यूशन विल नॉट बॉईल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें A और B दोनों प्रेजेंट। क्लियर? A का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, B डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो A is more volatile than B, A 80 डिग्री, B 100 डिग्री सेल्सियस। जब तुम इसे बॉईल करना स्टार्ट करोगे, A B दोनों, इसका लेट्स से एवरेज बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था कुछ फॉर एग्जांपल 90 डिग्री सेल्सियस इनिशियल, दोनों का 50-50%। जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा that has more tendency of vaporization। If you take temperature up to 90 degree Celsius, the vaporization of A will be more, the vaporization of B will also be there, but उतना ज्यादा नहीं। तो A का वेपराइजेशन ज्यादा, क्या हम बोल सकते हैं टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन चेंज होता चला जाएगा कि अब A ज्यादा वेपराइज हो रहा है तो A का कंपोजिशन कम हो जाएगा, B का कंपोजिशन अपने आप बढ़ने लगेगा यहाँ पर क्योंकि ये ज्यादा बाहर चला गया है। तो B का कंपोजिशन बढ़ने लगेगा, मतलब इसका कंपोजिशन बढ़ रहा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। So after some time of boiling, the boiling point becomes 91 डिग्री सेल्सियस, और बॉईल करोगे 92 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे वो A की तरफ जाएगा क्योंकि A का फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। बट इस केस में A और B का फ्रैक्शन जो लिक्विड में वही वेपर में है, that is not changing। यदि A और B का फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या थर्ड पॉइंट समझ में आता है? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, चलो अब अगेन we have two cases for non-ideal solution। So definitely there are two cases for azeotropy, azeotrope और constant boiling mixture। एक पॉजिटिव डेविएशन के रिस्पेक्ट में, एक नेगेटिव डेविएशन के रिस्पेक्ट में। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज्यादा वेपराइजेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इजीली बॉईल होगा। सो पॉजिटिव डेविएशन के रिस्पेक्ट में जो एजियोट्रोप आएगा वी कॉल इट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप तो हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग, और नेगेटिव डेविएशन के रिस्पेक्ट में जो आएगा उसे बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बस कुछ पॉइंट्स कॉपी करने।
ये बुकलेट का ही पिक्चर है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नॉन आइडल सॉल्यूशन showing large positive deviation from Raoult's law from minimum boiling azeotrope, which boils at a temperature lower than boiling point of its components A and B both. Some examples are given. Example बहुत ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। वाटर प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस मिथेनॉल। वहीं पे हम बात करें मिनिमम क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। So maximum boiling azeotrope, non-ideal solution showing large negative deviation from Raoult's law form maximum boiling azeotrope. जो negative deviation होगा वो maximum boiling azeotrope, जो positive deviation होगा वो minimum boiling azeotrope. And some examples are given. और ये example HCl वाला water वाला NCERT में भी दे रखा है, exactly same line, similar pattern पे। हमें ध्यान रखना है, कॉपी कर लो जितना स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। निकिता, ओमकार, जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना। प्रिया, हमारा कितना डिस्कशन हुआ था एक्सरसाइज 1 का, कहाँ तक कंप्लीट हो चुके थे? विच सेक्शन?
सेक्शन एच। सेक्शन एच कंप्लीटली डिस्कस हो गया था क्लास में, राइट? हाँ। ठीक है, सेक्शन आई बचा है व्हिच इज बेस्ड ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो आज हुआ है। वी हैव कंप्लीटेड थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। डेफिनेटली आइडियल नॉन आइडियल पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का आज टाइम नहीं मिला। वी हैव लेक्चर डे आफ्टर टुमारो, तो उसमें हम एक्सरसाइज 1 तो क्लास में ही करेंगे, बट यस आई विल गिव सम होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 2 and 3। कितना कर लोगे परसों तक बताओ मुझे? एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट, जो भी बचा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ और देना है क्या? ओके, कॉपी हो गया है मानसी? Yes, sir. चलो ठीक है। ओके, तो टुडे आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। होमवर्क मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट, वो परसों तक करना है लेक्चर के पहले तक, ठीक है?